بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا اللہ شام کو آسان بنا دیجیے ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے گوش کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے سننے تشبیہ عطا فرمائیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ. چلیے right from the beginning, inshallah. First تو یہ اس میں ایک لکھ لیجیے لیکن I recommend that every one of you should have a notebook. جی جی سمجھتے کہ آئندہ بھی بہت سی چیزیں لکھنی پڑے گی. اور ایک بجائے یہاں کی قرآن بارو کرنے کے لیے کی بجائے آپ کی اپنی قرآن ہو تو اس میں کہیں مارجن میں بہت سی چیزیں لکھی جا سکتی. اس میں تین چار حضرات ہیں جو بہت سینئر ہو گئے ہیں انشاءاللہ. چلیے آج کا جو پہلا لیسن ہے I will try to make it as easy as possible. ہم سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو پہلا لیسن ہے اس about کلیمہ. کلیمہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے کلیمہ بالکل سمپل ہے. یہ الفاظ سے ڈریے مت، پریشان مت ہوئیے. It's nothing. اردو میں جسے ہم کیا کہتے ہیں کلام اور کلمات اس کا پلورل ہے ورڈس. ٹھیک ہے. دوسری زبانیں کمپیئر ٹو عربک بہت زیادہ مشکل ہیں. انگریزی میں ورڈس کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں گے تو دیر میں بھی ایک ٹائپ آف ورڈ ناؤن ہوگا، پروناؤن ہوگا، ایڈجیکٹو ہوگا، ورب ہوگا، ایڈورب ہوگا، انٹروڈکشن ہوگا، کنجکشن ہوگا. عربک میں کلمے کی قسمیں ٹوٹل کلمہ جتنے الفاظ قرآن میں ہیں وہ کتنے کیٹیگریز میں تقسیم ہوئے. کتنے کیٹیگریز کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پورے جتنے الفاظ قرآن میں. کوئی اور قرآن سینئر گریجویٹس نہیں؟ کیا ہو گیا؟ یہ قریبی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہت آسان ہے. We can divide it into only 3 categories. That's it. قرآن میں جتنے الفاظ ہیں وہ صرف 3 کیٹیگریز میں ہی ڈیوائڈ ہوں گے. وہ 3 کیٹیگریز کیا ہیں؟ تو اگر عربی نہیں آتی ہے تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اسم، نام یا اس کو
اسما ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا تو بول سکتے ہیں فعل. آگے لائن پہ فعل. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ verb. اور رومن بھی لکھ دے رہا ہوں فعل. اور تھرڈ FAL کر دیتے تھے. تھرڈ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہو گیا؟ ہاں verb. پہلا تو اسم ہو گیا. دوسرا کون بولا؟ کسی حد تک اسے حرف کہتے ہیں. ایک حرف تمنا. پریپوزیشن یا پھر کوئی بھی تمام. دیکھیے قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. اٹس ویری ایزی ٹو ریممبر. 4-6 یاد رکھ لیجیے. آیت سے مراد وہ قرآن کا حصہ جو ایک سرکل پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی نمبر ہوتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں. کتنی آیات؟ نمبر آف آیات. نمبر آف آیات ان قرآن. اس کو بہت آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے. 4-6 4 × 6 4 × 6 6666. اب پورے ورڈز کتنے ہوں گے قرآن میں؟ کلمات کتنے ہوں گے؟ کوئی اندازہ؟ 600. 6,000 تو آیتیں ہوں گے. اچھا نہیں ان ریپیٹیڈ بول رہا ہوں میں. ریپیٹڈ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. 37,000 86,430 کلمات جو ہیں، ورڈس یا کلمات. یہ ذرا 8 فیگر ہے. 86,430. تو ہم اس کو 87,000 ورڈس کر لیتے ہیں راؤنڈ فیگر تاکہ یاد رہے. ٹھیک ہے. تھوڑا اس کو بات کرتے رہے، اس پہ تو یاد ہو جائے. 86,430 یاد رکھنے میں مشکل ہے تو تھوڑا سا بڑھا کے راؤنڈ فیگر کر لیے. 87,000 ورڈس. اپروکسیمیٹ. اب یہ 87 دیکھیے وہ 1000 بار آپ پڑھ چکے ہیں. سورہ قمر کی آیت کے لقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہوتا. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو کیسے آسان بنا دیا ہے. حالانکہ عربی زبان بڑی رچ زبان ہے، اوریجنل لینگویج ہے اور بڑی بلیغ زبان ہے. بہت کم الفاظ میں زیادہ معنی دینے والی زبان ہے. اس کے باوجود اللہ کا وعدہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. لقد میں نے یقیناً، یسرنا کہ میں نے ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو. کس کے لیے؟ جو اس کو سیکھنا چاہتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کال کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں. کس کو؟ حل من مدکر. ہے کوئی سیکھنے والا؟ جب یہ آسان ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، ان کا شمار نہیں کر سکتے، جو اپنے اپنے لیول پہ قرآن کو آسان کرنے کی کوشش کیے ہیں. بہت سے بہت کوششیں ہو رہی ہیں. خاص طور سے اس صدی کے یہ جو 16 سال ہیں، اس میں بہت ترقی ہوئی. پہلے جب تک انٹرنیٹ نہیں تھا یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے. چلیے، تو 87,000 ورڈس.
अब हम देखेंगे कि इस्म किसे कहते हैं। नाम तो सबको मालूम है, हर एक जानता है, इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है कि नाम क्या होता है। नाम क्या होता है? Name of a person. नेम है किसी भी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह के नाम को Name, place of thing. नेम कहते हैं, वो नेम कहलाएगा। और उसके बाद मिसालें नूह हैं, इब्राहिम है, कोई नाम बताइए कुरान से। किताब है, City है. टाइलर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, हिलारी क्लिंटन है, ये सारे नेम्स हैं। इस सारों को हम क्या कहेंगे? इस्म। इस्म के भी दो किस्में होती हैं मेनली, वो भी अंग्रेजी में सबको मालूम है। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इट इनटू, Noun and pronoun. नहीं वो दो किस्में नहीं, Proper noun and एंड कॉमन नाउन, Common प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। किताब, किसी भी किताब को किताब कहेंगे, किसी भी शहर को शहर करेंगे। टाइलर को फिर एक ख़ास शहर हो गया। किसी भी आदमी को आदमी कहेंगे, मॉनिटर को उमर कहेंगे, तो उमर एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये सब करेंगे हम, अभी उसकी उतनी फिक्र मत करिए। बहरहाल इस्म की तारीफ आपको मालूम है। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, फेल क्या है? doing something. किसी भी काम का होना सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर। फेल क्या होता है? उसमें दो कंडीशन होते हैं। फेल में दो कंडीशन होते हैं, तो वो वर्ब कहलाता है। एक तो उसका करने वाला हो और उसके अंदर वक्त हो, कौन से वक्त पे काम किया गया। ज़माना अगर मालूम हो और काम का करने वाला अगर मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। और हर्फ क्या है? दीगर ये किसी भी लफ्ज़ के साथ मिल के दो लफ्ज़ों के बीच में, दो कलिमात के बीच में रब्त पैदा करने वाला। दो कलिमात के बीच में कोई रब्त, वो अपने तौर पे खुद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन दो कलिमों को जोड़ने वाला। अब जैसे अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ आई वेंट स्कूल, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना। आई वेंट स्कूल तो कोई मायने नहीं रखता। देयर शुड बी ए हर्फ। क्या हो गया? क्या होना चाहिए? एटलीस्ट टू होना चाहिए। वैसे ज़हब तू इलल मदरसती, इला आ गया। ज़हब तू के मैंने मैं गया, किधर गया? मदरसे की तरफ गया। इला क्या है? ये हर्फ हो गया। अब देखिए, ये तीन समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस्म है, फेल है, हर्फ है। क्लियर? अब अरबी ज़बान में ये बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। कुल 17 या 18 हुरूफ हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वो हुरूफ समझ में आ जाएंगे। उसका रब्त कैसे कायम होता है वो भी समझ में आ जाएगा। नॉट मोर देन 18, एक्चुअली 17। असमा भी बहुत से हैं, लेकिन सबसे अहम और कंफ्यूजिंग जो वर्ड, जो कलिमा है, वो ये है, फेल। ठीक है? फेल होता है, वर्ब होता है। दुनिया की सारी ज़बानों में जो फेल इस्तेमाल होता है उसमें सब्जेक्ट हमेशा डिटैच होता है, उससे अलहदा होता है, उसमें कहीं मिलावा नहीं होता फेल में। अंग्रेज़ी में वो चहल कदमी कर रहा है, क्या बोलेंगे? ही इज़ वॉकिंग। वॉकिंग इज़ वॉकिंग फेल है। और ही उर्दू में बोलेंगे वो खा रहा है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। अटैच है या डिटैच है? डिटैच है। हर ज़बान में आम तौर पे, जितनी ज़बान में मैं या आप जानते हैं,
اس کے اندر سبجیکٹ ہمیشہ ڈیٹیچ ہوتا ہے، اس سبجیکٹ کے ساتھ فعل کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب جب عربی کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، دوسری اہم چیز جو اکثر ڈاکٹر کو بھی کنفیوز کرتی تھی، اس کو ہم اتنا آسان کر دیتے ہیں ابھی۔ دا سیکنڈ تھنگ از root word 99.9 یہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 3 لیٹرڈ ہوتا ہے۔ 3 لیٹرڈ ہوتا ہے، اس میں 3 حروف ہوتے ہیں۔ منیمم میکسیمم کم سے کم 3 99.9 3 لیٹرڈ ہی ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں جس میں 4 ہوتے ہیں، میکسیمم 5 ہوتے ہیں، لیکن اس میں پوری قرآن میں 2-3 سے بڑھ کے نہیں ملے۔ 99.9 جو روٹ ورڈ ہوتا ہے 0.9%، اوکے، یہ روٹ ورڈ 3 لیٹرڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہے نصرہ، اس کو کھولیں گے تو کیا ہوں گا؟ ایک حرف ہے، اس کے بعد سواد ہے، اس کے بعد وہ ہے، نصرہ، نصرہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ۔ اور کچھ مثالیں آپ دے سکتے ہیں؟ عبادہ فعل کیا بولے؟ جعلہ بولے، کیا بولے؟ جعل ٹھیک ہے، جعلہ، خلق قرآن میں اس کے ڈیریویٹیوز ہوں گے، یہ خود نہیں ہوگا، یہ بھی ہوگا، اس کے جو ہے ڈیریویٹیوز بھی ہوں گے۔ اس کے ڈرائیوڈ فارم، ڈیریویٹڈ فارمز ہوں گے۔ بہت جلدی، اتنی آسانی سے آپ کو یہ چیز ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے نصرہ کو اگر ہم لے لیے، اس کا پہلا کیریکٹرسٹک آپ میں جو بتایا 99.9 کتنے لیٹر ہوتے ہیں؟ 3۔ یہ سب میں 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی غور سے میری بات سنیے، ان میں بھی پھر 99.9 جو ہوتے ہیں، نمبر سیکنڈ کیریکٹرسٹک 99.9% جتنے روٹ ورڈ رہتے ہیں، ہر ایک کے اوپر فتح یا زبر آئے گا۔ زبر، فتح کہتے ہیں اس کو، یا زبر کہتے ہیں، یا پھر وہ سب منصوب ہوں گے، زبر والے ہوں گے۔ 0.01 جو آئے گا اس میں تھوڑی سی تبدیل، جیسے اخیر میں نبی جان نے کہا حمدہ نہیں ہے، وہ حمیدہ، مڈل لیٹر ویریشن ہوگا۔ مڈل لیٹر میں یا تو زیر آئے گا یا پھر پیش آئے گا۔ یہ 0.01 ان کو بہت بہت کم استعمال، بہت کم ہے۔ زیر آئے گا یہ مڈل لیٹر۔ 99.9 ہر ایک کے اوپر کاتب، جعل، قتل، حمید، کرم۔ چلیے اب ہم ایک اس کے معنی کیا ہوئے پھر نصرہ کے تھرڈ تھنگ روٹ لیٹر کے کیریکٹرسٹک میں سنگولر تھرڈ پرسن، یہ جو ہے اس میں کام بھی ہوگا اور اس کے اندر سبجیکٹ پلس ورب ہوگا، ہمیشہ ڈیٹیچڈ ہوگا۔ سبجیکٹ
प्लस 1। इसी के अंदर ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दुनिया की वो तमाम ज़बानें जो मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, कोई ऐसी ज़बान नहीं है जिसमें सब्जेक्ट अटैच्ड होता है। जितनी ज़बानें हम जानते हैं सब में सब्जेक्ट डिटैच होता है, अलग से होता है। लेकिन अरबी की खुसूसियत यह है कि उसमें डिटैच होता है, अटैच होता है। अब रूट लेटर में जो सब्जेक्ट अटैच है हमेशा, हर रूट लेटर में, वो क्या है? वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन जेंडर। उसको हम अंग्रेजी में बहुत आसानी से सिर्फ ही याद रखते हैं, ही। ठीक है, ही जिसे कहते हैं ना, तो ऑलवेज द सब्जेक्ट विल बी ही। ये इसको खोल के बयान अगर करें इसमें तो सब्जेक्ट डिटैच नहीं है, अटैच्ड है। ये अटैच्ड है इसके अंदर। अब नसरा के मायने क्या हुए? उसने मदद अभी की। और एक फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, रूट लेटर हमेशा कौन से टेंस में होगा? टाइम। हम वर्ब में देखे थे कि टाइम और सब्जेक्ट दो चीजें हुई तो ही वो वर्ब कहलाता है। तो कौन सा टेंस होगा इसका? पास्ट टेंस। हमेशा पास्ट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रूट लेटर के हैं। हमेशा पास्ट टेंस में हो। ठीक है, बहुत आसान है। 5 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो ये कि 3 लेटर्ड होगा। एक बार रिवीजन। सेकेंड, फतह के साथ होगा। 2 एक्सेप्शनल केस हैं, उसको अभी बाद में देखेंगे। फतह के साथ होगा। तीसरा, वर्क एंड सब्जेक्ट टुगेदर, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब अटैच होंगे। चौथा, मैस्कुलर जेंडर, ही। थर्ड पर्सन, हमेशा उसका सब्जेक्ट ही होगा। और पांचवा, पास्ट, हमेशा पास्ट। ये 5 कैरेक्टर, कहीं भी रूट लेटर होगा तो उसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलेंगे। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो ही उसको हम क्या कहेंगे? रूट वर्ड, रूट वर्ड कहेंगे। अब इसके डेरिवेशन, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इससे डिराइव्ड वर्ड निकलते हैं। अब हम एक खतला को कम से कम ले लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक को सामने रख के इसके मैंने बताइए। उसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया। माजी में। अंग्रेजी में he He killed, he killed, he murdered, है ना, वो कत्ल किया। हो गया पूरे माने। ही उसका सब्जेक्ट हो गया, 3 लेटर्ड हो गया, पास्ट टेंस हो गया, किल्ड या मर्डर्ड। अब वो 3 हर एक के ऊपर ज़बर आ गया। अब ज़रा सा 1 मिनट गौर करके, न भाई जान, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ। खतला, अब खतला से ऐसे कितने वर्ड अब ड्राइव्ड हैं जो कुरान भी पढ़ते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कत्ल, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। कितने वर्ड आपके जहन में, थोड़ा सी गौर करके बताइए। मक्तल हो गया, पहले तो कोई कत्ल करने वाला होगा ना। कातिल। ठीक है, कतला से आप क्या निकाले? एक, अब अल्फाज निकलते जाएंगे, इससे ड्राइव निकलेंगे। जो कत्ल किया उसे हम क्या कहेंगे? फाइल। अब बेचारा कोई कत्ल होने वाला भी होगा, कोई कत्ल कर रहा है तो मकतूल भी होगा। मफऊल, और मकतूल भी होगा। और कहीं एक मुकाम होगा जहाँ पर कत्ल किया जाता है या लड़ाई होती है, वहाँ मारा जाता है, उसको मख्तल, मख्तल कहेंगे उसे। मख्तल मख्तल जगह है, इसमें मकान होगा मख्तल। ये सारे चीज़ें इससे कैसे? खतला से ड्राइव हुई। वैसे तो रूट वर्ड एक ही है, लेकिन उससे कई वर्ड हम निकाल सकते हैं। और एक मिसाल हम ले लेते हैं कतबा की। चलिए वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जहन में रख के
इसके मायने बताइए कतबा के। उसने लिखा। कतबा he wrote, पूरे है ना वो पांचों कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड है, फतह के साथ सबके ऊपर फतह है या कसरा है, वो फतह है, जबर है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब ही। इसी में अटैच है, ही है, He wrote. और पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा, Wrote. ही रोट, कतबा। अब सर इससे कितने वर्ड आप ड्राइव करते हैं, ये है क्या है, ये किताब, किताब है, मकतब, मकतब है, किसे कहते हैं मकतब, लाइब्रेरी। किताब, मकतब खाली, मकतब लाइब्रेरी को नहीं कहेंगे, मकतब, तिफले मकतब हैं अभी आप सुने होंगे, नहीं जगह नहीं नहीं, तिफले मकतब किसे कहते हैं, फासले, बच्चा स्कूल जाने वाले बच्चे को तिफले, मकतब कहते हैं मदरसा, मदरसे को कहते हैं, और लाइब्रेरी को क्या कहेंगे, जहाँ किताबें लिखी हुई रखी जाती हैं, मकतबा कहेंगे, वेरी गुड, मकतबा कहेंगे उसको, मकतबा, मकतबे में आई है, लाइब्रेरी को कहेंगे। और जो चीज़ लिखी गई, किताब। हाँ जो लिखने वाला है कातिब है, और जो चीज़ लिख के किसी को भेजाया तो उसे क्या कहेंगे, मकतूब। मकतूब। ये शायर के पास तो वोकेबलरी होती ही है, मकतूब कहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द ड्राइव्ड वर्ड्स, और इससे एक चीज और निकलती है, कतला से क्या निकलता है, कत्ल, कत्ल। अब ये कत्ल क्या हुआ, फेल। fail, नहीं फेल नहीं होगा, फेल तो खतला ही होगा, खतला फेल होगा, एक्शन। एक्शन क्या कत्ल क्या होगा, वो तीन कलिमात में कत्ल को कहाँ रखेंगे, फेल है, फेल। फेल नहीं है, इसम होगा, वेरी गुड, इसम होगा। अब जहाँ पर हम पढ़े थे कि जगह का नाम, शख्स का नाम, चीज़ का नाम, जानवर का नाम, है ना, वो इसम होते हैं, वैसे ही किसी काम का नाम, कत्ल किसी काम का नाम है, कोई काम करना, खाना किसी काम का नाम है, दौड़ना किसी काम का नाम है, पढ़ना किसी काम का नाम है, तो वो क्या हो गया, इस्म हो गया। तो उसको हम अरबी में मस्दर कहते हैं, या फिर आसान तरीक़े से मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं, नबी जान को बहुत तकलीफ़ होती, सीधा सीधा वर्बल नाउन, क्या बोलेंगे इसको, वर्बल नाउन, ठीक है, वर्बल नाउन। तो आज हम क्या क्या इसमें पढ़े, एक तो हम पढ़े कि कलिमा क्या होता है, और पूरी कुरान में कलिमाओं की तादाद क्या है, क्या है, 6666। 6,000 का है वो, नहीं नहीं वो 86 तो आयतों की तादाद है, डोंट गेट कंफ्यूज, आयतें हैं वो टोटल, 86,430। बिजी है ना असल में, ये और कुछ नहीं, ये सीख जाएंगे आज कि किस तरह ना। 87,000 हम उसको राउंड कर लिए थे, ठीक है, 87,000। और वो 87,000 कितने कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, सिर्फ 3 कैटेगरी। वो 3 कैटेगरीज क्या है, इसम, या तो वो ड्राइव्ड होगा, या फिर किसी चीज़ का नाम होगा, अर्ज होगा, समा होगा, शजर होगा, वो किसी चीज़ का नाम होगा, या फिर ड्राइव्ड होगा। उमर, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ हम करें, वो रूट वर्ड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो 3 लेटर्ड होता है। ये तो अभी हम सतही बात करें, इसमें 14 कॉन्जुगेशंस पास्ट में होंगे, सब्जेक्ट अटैच कैसा होता है, एक ही अगर सब्जेक्ट रहा तो क्या होगा, वो 2 रहे तो क्या होगा, वो सारे लोग रहे तो क्या रहेगा, है ना, वो तुम करे तो क्या रहेगा, कोई औरतें वही काम कर रही है तो क्या रहेगा, वो धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया, रूट वर्ड मालूम हो गया और उसके बाद कलिमा मालूम हो गया। क्या भाई नहीं आ रहा है? इसको तो नोट भी कर लिए होंगे, जी सर। तो मैं इसे रेस्ट कर दे रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है उमर? अब तक जो करे नहीं सही। ये यूट्यूब पे भी डालना है इंशाल्लाह। डाल दो से नहीं हाँ रहे जी, हो गया। जी सर। किसका? But he's losing Florida now. Let's see. सूरतुल इंशाअल्लाह। देखिए कितना आसान होता है, कितना समझ में आता है। सूरतुल फातिहा में टोटल कलिमात कितने हैं? कलिमा अभी कलिमा समझ चुके हैं, वर्ड होता है, ठीक है। कलिमा किसे कहते हैं? वर्ड होता है। तो सूरह फातिहा में वर्ड्स की तादाद, कलिमात की तादाद कितनी है? 26। तो टोटल कलिमात कितने हैं? कलिमात कितने हैं? 27. कितने हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे? 3 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा क्या होगा? इसम होगा, इसम होगा, उसको रोमन में इसम होगा, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दूसरा क्या होगा? फेल होगा, रोमन में फेल होगा, अंग्रेजी में वर्ड। और तीसरा क्या होगा? ये 1 लेटर का भी होता है, 2 लेटर के भी होते हैं। चलिए, अब सबसे पहला लफ्ज सूरह फातिहा में क्या है? अल्हम्द है, ठीक है। अब अल्हम्द देखिए, अब इसका रूट वर्ड निकालना है। तीन लेटर ही लेना पड़ेगा। तो अब ड्रॉप क्या होगा? अलिफ और ड्रॉप हो जाएगा अलिफ और लाम। देखिए, ये था अल। अब हमको सबसे पहले रूट लेटर निकालना है। तो अलिफ को ड्रॉप करेंगे, लाम को ड्रॉप करेंगे, तो क्या बच गया? हमीदा। हाँ। अब रूट लेटर के लिए इस पे क्या आना चाहिए? सत्ता। सब पे क्या पता आना चाहिए। लेकिन एक रेयर जो 0.01 है उसमें आता है ये जो है हो गया हमीदा। मगर कैसे आता है? हम्म? आता कैसे? हमादा नहीं होता है। हमीदा। 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 वो 5 जो उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया था, उसके लिहाज से हमीदा के मायने बताइए। वो तारीफ किया। 3 लेटर हैं, तीनों में कसरा है, बीच में बजाय फतह के कसरा आ गया। उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए।
और टेंस कौन सा चाहिए? पास्ट चाहिए। तो अंग्रेजी में उसका तर्जुमा क्या हुआ? He praised. He praised. He praised. या वो तारीफ किया। तर्जुमा हुआ he praised. हामिदा। ठीक है, इससे मस्दर बनाएंगे। मस्दर के माने वर्बल नाउन। वर्बल नाउन माने जिसमें ना ज़माना है ना सब्जेक्ट है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ काम का नाम होगा। काम का नाम क्या होगा बताइए? हम हमद होगा। क्या होगा? ये क्या हो गया? वर्बल नाउन हो गया, इस्म हो गया, मसदर। मस्दर हो गया। इसको ये हमीदा रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, इससे ड्राइव्ड फॉर्म मस्दर बना है। मस्दर या फिर वर्बल नाउन। वर्बल नाउन वो क्या बन गया? हम हमद।